Am I audible? Dhanashri? Dhanashri, am I audible, beta? Dhanashri? Dhanashri, am I audible? Yes, sir. Ankita, हाँ, okay. Wait for 2-3 minutes. Join for all students. अंकिता, धनश्री ज्वाइन करने के लिए बोले सभी स्टूडेंट को. लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे आप अंकिता, धनश्री? Yes, sir. ओके. लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया था हमने? याद आ रहा है थोड़ा सा? लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया था? यस धनश्री, अंकिता, कौन सा एल्गोरिथम हमने स्टडी किया? व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर, लास्ट एल्गोरिथम? See the screen, everyone? See this screen? Everyone? Yes, Ekta, sir. Priyanka? Okay. What we have studied in the last lecture, in last algorithm? Yes, anyone? Yes, anyone? कौन सा एल्गोरिथम हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में? सर BFS DFS. यस, लेकिन उसके पहले किया था हमने ए स्टार एल्गोरिथम को स्टडी किया था. ठीक है. एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है, हमारे जो यूनिट्स है वो 2,
स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड है, एक है इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजी और एक है अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजी। इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजी में हमने डीएफएस और बीएफएस ये एल्गोरिदम को स्टडी किया था, ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। देन इन्फॉर्म सर्च स्ट्रैटेजी में सबसे पहले एल्गोरिदम को स्टडी किया हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम को, ठीक है, आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। देन हम लोगों ने स्टडी किया ए स्टार एल्गोरिदम, ठीक है। ए स्टार एल्गोरिदम को भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या मैं एक्सप्लेन करना इसको एक्सप्लेन करना है तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं एओ स्टार एल्गोरिदम पर जाता हूँ। यस, इसको मैंने अच्छे से, हाँ यस बोलो। यस सर, एक्सप्लेन कर दीजिए। ए स्टार एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करूं मैं या एओ स्टार एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करूं? सर ए स्टार एल्गोरिथम। ओके, वी विल स्टार्ट द ए स्टार एल्गोरिदम, ठीक है। ए स्टार एल्गोरिदम में क्या होता है कि ए स्टार एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजी एल्गोरिदम, ओके। इट इज यूजिंग द heuristic value, it is using the heuristic value. So what is the heuristic value? It is a technique to design to solve a problem quickly. And what is the approach of the heuristic? Heuristic technique is any approach to problem solve that use a practical method or various shortcut in order to produce solution that may not be optimal but are sufficient given a limited time frame or a deadline. Okay, a heuristic can be considered as a calculated guess about the information that is actually not present in the data. When working in the field of artificial intelligence, there are timers when it is not possible to understand the path that the AI entity takes to achieve the goal. Okay, in these graph, like this A, B, C, D, E, F. These are the directed graph and which is involved in the heuristic value. Like this, A is the heuristic value is 14, B is the heuristic value is 12, F is heuristic value is 11. Okay, C is heuristic value is 11 is also given that. Okay, and some edges are present like this A to B, B to C, sorry B to F, F to G, or A to C, C to E. ठीक है, these are the edges and this is the weight of the edges or cost of the edges, ठीक है। And then find the heuristic value. How to find the heuristic value? Using these equations. F of n is equal to g of n plus h of n. So what is the g of n? G of n is the actual cost from start node to end node, actual cost of the edge, and h of n is the estimate cost from n node to goal node. Like that, A is a 14. A is a heuristic value is 14. How to calculate the A is heuristic value of 14? A to goal node, यानी कि start node to goal node, okay? And B value is heuristic value is 12, okay? So how to calculate? In this equation, using this equation, g of n plus h of n. So 5 plus 16, 12 plus 11, ठीक है, like that. And then is in the examination or in the any graph, we will present or we will give the also the heuristic value, ठीक है। So in this graph, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है एंड एजेस की कॉस्ट भी यहाँ पर दी हुई है। तो हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू optimal path, how to calculate optimal path in this graph using the A star algorithm. Then asterisk sign that or star sign is considered as a admissible, that is guaranteed to find the optimal path, that is guaranteed to find to optimal path. Okay, this is the special graph. So it is an informed search technique and find the optimal path. And how to find the optimal path? देखो यहाँ पर A goes to B side and C side, ठीक है। A यहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ मूव हो रहा है, देखो A goes to B side and A goes to C side. C is a node, okay। तो यहाँ पर हम लोग
गोल को कैसे फाइंड करेंगे, ऑप्टिमल पाथ को कैसे फाइंड करेंगे, उसको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको कि किस तरीके से ए स्टार एल्गोरिथम वर्क करता है। ठीक है, सो सबसे पहले फॉर ए नोड एफ ऑफ ए, यूजिंग दिस इक्वेशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, यूजिंग दिस इक्वेशन एफ ऑफ ए का ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितना है, 14 है, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है, जब हमारा यहाँ से स्टार्ट नोड है तो उसकी कॉस्ट कितनी रहेंगी, 0 रहेंगी, तो 0 प्लस 14 इज इक्वल टू 14। ठीक है, देन सेम लाइक दिस ए टू बी, हम कहाँ से जाएंगे, हमारा ग्राफ कैसे जाएगा, ए से लेकर बी तक जाएगा, तो ए से लेकर बी तक जाएंगे तो कैसे कॉस्ट फाइंड करेंगे, हम एफ ऑफ एन कैसे फाइंड करेंगे, 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। यहां से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एज एंड heuristic value of the b, actual cost of the a to b and heuristic value of b, that is 12, and both are add is equal to 16, 4 plus 12 is equal to 16, तो यहां पर कितना वैल्यू मिल रहा है, 16। देन अगेन आई विल गो टू द a to c। ठीक है, मैं कैसे जा रहा हूँ, a से c पे जा रहा हूँ, तो मुझे कौन सी वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे देखो 3 टू एज की वैल्यू कितनी है, 3, एंड मैं कैसे जा रहा हूँ, ए से लेकर सी पे जा रहा हूँ, तो सी की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पे जो मैंने दी हुई है यहाँ पर 11 दिया हुआ है। हाँ, तो 3 प्लस 11 कितना होगा, 14। सो बोथ द डायरेक्शन वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी और ए टू सी, द मिनिमम वैल्यू इज ए टू सी, मिनिमम वैल्यू इज ए टू सी, यानी पाथ सी इज minimum value, so I will consider the minimum value, I will consider the minimum value, so a star algorithm is also consider the minimum value. Okay, minimum value is a best value, minimum value is a best value, then again also go c to e or c to d. A star algorithm is based on the OR graph. Okay, A star algorithm is based on the OR graph. तो यहां से मैं ई पे भी जा सकता हूं एंड डी पे भी जा सकता हूं, यानी सी टू ई और सी टू डी। इफ आई कंसिडर सी टू ई, ओके, इफ आई कंसिडर सी टू ई, यानी कि ए टू सी सी टू ई, तो हाउ टू कैलकुलेट एफ ऑफ एन, हाउ टू कैलकुलेट, सो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ए टू सी टू ई, तो 3 प्लस 10 दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट of age and heuristic value of e, यानी कि 3 प्लस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होता है, देखो यहाँ पर 17, 3 प्लस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 17। then also goes to c is also goes to c to d. Okay, then again calculate the f of n using this equation, so 3 plus 7 plus d की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 3 प्लस 7 एंड ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ द डी कितना होता है, 3 प्लस 7 प्लस 6, सो आई कंसिडर और इंडिकेट द ग्रीन वैल्यू इज a heuristic value of the node. Get it this point everyone, is it fine? Yes, ये समझ रहा है यहां तक? Yes everyone, only 10 students are joined. Yes sir. Okay, तो यहां पर क्या हो रहा है कि मैं फिर से आगे बढ़ा, मैंने ग्राफ से फिर से एक पाथ कंसिडर किया और मेरी जो वैल्यू मिली है मुझे वो 17 मिली है। देन अगेन आई विल चूज डी टू ई, यहाँ पर कोई और नहीं है, यहाँ पर डी से मुझे ई पर ही जाना है, तो यहाँ पर मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पर अगेन फाइंड करेंगे हम इक्वेशन से, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, मैं जब भी फाइंड कर रहा हूँ ए से लेकर के जी तक जाने के लिए फाइंड कर रहा हूँ, जी इज अ गोल नोड एंड ए इज अ स्टार्ट नोड, इसलिए मैं इन बिटवीन सभी को कैलकुलेट करते समय पर ए से स्टार्ट करूंगा यूजिंग द एजेस। तो मेरी वैल्यू क्या रहेंगी, 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 इज अ ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ द ई। ठीक है, तो यहां पर क्या निकलेगा, 3 प्लस 7, यहां पर देखो ए सी डी, पहले ए से सी पे गए, सी से डी पे गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है। ठीक है, 3 प्लस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। देन अगर मैं डी से ई पर जाता हूं तो वैल्यू मेरी कितनी मिलती है, 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 इज अ ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ द ई एंड 6 इज अ ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ द डी।
ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो आंसर क्या मिल रहा है, मुझे 16 मिल रहा है। सो इन दोनों में भी मिनिमम कौन सा मिल रहा है मुझे, A to C to D। देन अगेन आई विल गो टू द A to D, C to D to E। मेरे को मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 16 मिल रही है। लेकिन यहाँ पर भी 16 वैल्यू मिल रही थी और यहाँ पर भी 16 वैल्यू मिल रही थी। तो मैं ए से लेकर बी के तरफ से भी क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अगर मैं यहां से एक्सप्लोर करता हूँ तब मेरी वैल्यू क्या मिलेंगी, मुझे अभी तक नहीं पता है। मेरी वैल्यू ई तक मुझे कितनी फाइंड हुई है, 16 वैल्यू मिली है, और 16 इज अ मिनिमम वैल्यू, बट बोथ आर सेम। यानी कि ए से लेकर के बी की भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 16 मिल रही है और ए से लेकर के ई की भी वैल्यू 16 ही मिल रही है, तो बोथ आर सेम। सो आई एम यूजिंग द दिस पाथ एटलीस्ट वन। ठीक है, तो मैं अगर यहां से मैं एक्सप्लोर करता हूं तो मैं यहां से एक्सप्लोर करके दिखाता हूं आपको। ए से लेकर मैं बी तक गया तो मेरी वैल्यू कितनी मिली, मुझे 16 मिली। लेकिन ए से लेकर बी, बी से लेकर के एफ तक मैं अगर जाता हूं तो मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी मिलती है, 4 + 5 + 11। ठीक है, 4 + 5 + 11, 11 इज ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, तो यहां पर जब मैं उसको ऐड करता हूं तो मेरी वैल्यू कितनी मिलती है, 20। 20 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो यहां पर मैं स्टॉप कर देता हूं क्योंकि मेरी वैल्यू क्या मिल रही है, मुझे मैक्सिमम मिल रही है। इफ अगेन अगर मैं उसको फिर से एक्सप्लोर करता हूं, ए से लेकर बी, बी से लेकर एफ एंड एफ से लेकर जी तक, तो मेरी वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 25। ओके, देखो यहाँ पर 4 + 5 + 16 एंड जी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू तो 0 रहेंगी, बिकॉज दिस इज द टर्मिनल नोड, दिस इज द सॉल्व नोड। ओके, वहां पर टर्मिनल है, हमने कंसिडर किया है कि वो एंड नोड है, स्टॉप नोड है और गोल नोड है, तो उसकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। हम उसको 0 कंसिडर करते हैं, दैट इज द टर्मिनल नोड। ओके, सो यहाँ पर इनके एजेस की जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कितना कैलकुलेशन मिल रहा है हमको, देखो यहाँ पर 4 + 5 + 16 इज इक्वल टू 25। 25 नंबर इज द मैक्सिमम। ओके, तो यहां पर से हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम एक्सप्लोर कहां से करेंगे, फिर यहां से ही करेंगे, ई से लेकर के जी पर जाएंगे। तो जब हम लोगों ने ई से लेकर जी पर गए तो हमको वैल्यू कितनी मिल रही है, देखो ए टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू जी। हम यहां से एक्सप्लोर होते तो कितनी वैल्यू मिलती है, एजेस की वैल्यू देखो यहाँ पर 3 + 7 + 2 + 5 इज इक्वल टू प्लस 0 इज इक्वल टू 17। 17 इज अ मिनिमम नंबर and 25 is a maximum number. So we will choose this path, we will choose this path, A to C, C to D, D to E, E to G. Got it this point everyone, कि कैसे ऑप्टिमल पाथ हमने फाइंड किया। सो ऑप्टिमल पाथ इज A to C, C to D, D to E and E to G. This is the optimal path. Okay, and what is the time complexity of the A star algorithm? So order of vertices plus edges, order of vertices plus edges in the data structure. And artificial intelligence, the time complexity of the A star algorithm is order of b to the power d, b to the power d. So b means is the branching factor, that is the all node of the children's, we are connected to the parent node, and d is considered as a depth, and d is considered as a depth. Got it this point everyone, is it clear? Yes, आगे बढ़े। कि लास्ट क्लास में मैंने ए स्टार एल्गोरिथम आपको पढ़ाया था, अगेन आई विल रिपीट, अभी मैंने रिपीट भी किया। यस, ये समझा आप लोगों को? यस एनीवन, ये समझा बेटा आपको सभी को? यस, दिशा, अंकिता, अथर्व, धनश्री, एकता। Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। बहुत ही इजी अल्गोरिदम है। इस तरीके से यूनिवर्सिटी में 6 to 7 मार्क के लिए क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एओ स्टार एल्गोरिदम। सो एओ स्टार एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन द इनफॉर्म सर्च स्ट्रेटेजी यूजिंग द ह्यूरिस्टिक वैल्यू। अगेन आई विल रिपीट, एओ स्टार एल्गोरिदम इज बेसिकली based on the informed search strategy using the heuristic value. AO star algorithm is basically
on a problem decomposition or break down the problem into the small pieces. What is the problem of decomposition? Decomposition का मतलब होता है कि जो complex problem होता है उसको हम break down करते हैं. That's why we make a breakdown and उसको हम क्या करेंगे, divided into the small problem. Then we will find out the solution. Then we will find out the solution. When problem can be divided into the set of sub problem where each sub problem can be solved separately, and a combination of this we will solution will be solution and or graph. Using the and or graph, that is the and or trees are used to representing the solution. The decomposition of the problem or problem reduction generate the and arc. And arc is provided, okay, in every graph, and we will find the heuristic value. Same function f of n, same equation, f of n is equal to g of n plus h of n. Then again g of n is the actual cost from start node to end node, that is the age of the cost, and h of n is the estimation cost from end node to goal node. Estimation cost from end node to goal node. So goal node is considered to us. Okay, it is an informed search and work as a best first search algorithm. AO-star algorithm is based on the problem decomposition, that is the breakdown problem into the small pieces. It represents the and or graph algorithm that is used to find more than one solution. It is an efficient method to explore a solution path. So we will using the one example. How to pass an exam? How to pass an exam? If do the cheating, otherwise do hard work and pass it. Otherwise do hard work and pass it. So we are present the arc, we are present the and condition, we are present the and condition, both are together. यहाँ पर एक ही condition, दो ही condition, एक और condition है और and condition है. तो how to pass the exam? Do hard work and pass it. Do hard work and pass it. So these arrow, though these both arrow are them together, okay, and or arrow is another, that is the cheating. Okay, do the cheating. How to pass the exam? Do the cheating. Got it this point? ये समझा आप लोगों को? Then another one example. Own mobile phones. हमारे पास अपना खुद का फोन कब रहेगा? Earn the money and buy mobile phone. Earn the money and buy mobile phone. हम लोग मनी अर्न करेंगे और अपना मोबाइल खुद खरीदेंगे. तो यहाँ पर जो आर्क मिल रहा है वो हमको कौन सा मिल रहा है? एंड कंडीशन का आर्क मिल रहा है. अदरवाइज हम क्या करेंगे? स्टील इट, चोरी करके भी हम लोग अपना मोबाइल मिला सकते हैं. बराबर है? गेट इट दिस पॉइंट एवरीवन? यस, गेट इट दिस पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Okay, so these are also explain the equation of the heuristic value. Note the graph will point both down to its successor and up to its parent nodes. Each node in the graph will also have a heuristic value associated with it. Using this equation, f of n is equal to g of n plus h of n. That is the f of n is equal to cost function. हमारी cost function हम लोग निकालने के लिए f of n equation का use करते हैं. And g of n is equal to, g of n means actual cost or age value, and h of n is a heuristic or estimate value of the node. ठीक है, ये पॉइंट को हमने डिस्कस किया है. So we will consider the one example. Okay, how to calculate the optimal path? How to calculate the optimal path? This is the and arc or this is the or side. ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ठीक है, सो यहाँ पर मैंने कुछ एम्प्टी बॉक्स दिए हुए हैं, उसको हम फिल करेंगे. सबसे पहले मैं एस से ए साइड, बी साइड और सी साइड यहाँ पे जा सकता हूँ. बराबर है? यानी कि मैं ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ? एस टू ए एंड बी, एस टू ए एंड बी एंड एस टू सी. ओके, एस गोज टू सी, एस गोज टू ए एंड बी. दिस इज द एंड आर्क. ठीक है, we will present in the graph. Okay, so how to calculate the heuristic value or how to calculate the function value of the s?
सो 7 + 1, देखो यहाँ पर 7 + 1 एंड 12 + 1, इन दोनों की जब मैं एडिशन करता हूं तो मुझे क्या मिलती है? ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिलती है, एस की मुझे ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिलती है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 7 + 12, ठीक है। ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 7 है, बी का ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितना है? 12। उन दोनों को मैं ऐड करूंगा और साथ ही साथ मैं क्या ऐड करूंगा? दोनों के एजेस की वैल्यू, ठीक है। इट इज डिफाइंड टू 1 इफ एजेस वैल्यू नहीं दी हुई है तो आपको क्या कंसीडर करना है? 1 कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एजेस की वैल्यू कितनी कंसीडर की है? 1 कंसीडर की हुई है, ठीक है। तो आंसर मुझे कितना मिलता है यहाँ पर? मुझे बताओ आंसर कितना मिल रहा है? 21, 7 + 12 + 1 + 1 = 21। गॉट इट दिस पॉइंट? ये समझा आप लोगों को कि यहाँ पर मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है? 21 वैल्यू मिल रही है। देन अगेन एज गोज टू सी, देन अगेन एज गोज टू सी, तो यहाँ पर मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी मिलेंगी? ऑलरेडी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है सी की? 13, तो 13 + 1, यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेंगी? 13 + 1 = 14, बराबर है, = 14। तो यहाँ पर मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे? 14 मिल रही है। सो मिनिमम वैल्यू इज 14, मिनिमम वैल्यू इज 14। तो हाउ टू ट्रेवल द AO star algorithm from A and B or S to C? We are using the S to C. We are using S to C because it is a minimum value. Then again revise value, ठीक है। Then again revise the calculate value. यहां पर जब मैं S से C पर जाता हूं तो C कहाँ कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है? C goes from F and G. This is the arc path and path, ठीक है। तो यहां पर मेरी दोनों वैल्यू कैसे निकलेंगी मेरी? देखो यहां पर 5 + 7 + 1 + 1 = कितनी वैल्यू बनती है मेरी? बोलो यहाँ पर कितनी वैल्यू बन रही है? 5 + 1 + 1 कितना हो गया? 7 + 7 कितना बन रहा है यहाँ पर? 14 वैल्यू बन रही है। कितनी वैल्यू बन रही है यहाँ पर मेरी? 14 वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो न्यू रिवाइज वैल्यू इज 14। सी की न्यू रिवाइज वैल्यू कितनी है? 14 है, ठीक है। और यहाँ पर इसके पहले प्रीवाइज वैल्यू कितनी थी? इसकी प्रीवाइज वैल्यू कितनी थी? 14 ही थी ऑलरेडी, ठीक है। तो अब मैं उसकी एक रिवाइज वैल्यू बनाऊंगा, नई वाली वैल्यू क्या निकलेंगी? 14 + 1, 14 + 1 = कितना बन रहा है? 15। 14 + 1 = 15. So S is a revised value is 15. Then again, if I travels S to A and B or S to A to D and E, A to D और E, अगर हम लोग ऐसे ट्रेवल्स करते हैं तो ऑप्टिमल पाथ कैसे फाइंड होगा हम उसको भी देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि मैं फिर से उसको सॉल्व करता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं ए की वैल्यू को निकालता हूं, ए की वैल्यू को फाइंड करता हूं। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा मैं? 6 + 1, 6 + 1 = कितना वैल्यू मिल रहा है मुझे? देखो यहाँ पर 7 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। गॉट इट दिस पॉइंट एवरीवन? यस। इफ मान के चलो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूं तो यहाँ पे क्या होगा? 5 + 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। 5 + 1 = कितना हो गया? 6 हो गया। तो मेरी नई रिवाइज्ड वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे? 6 वैल्यू मिल रही है, ओके। न्यू रिवाइज वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे? 6। सभी को समझ में आ रहा है क्या? यस, सभी को समझ में आ रहा है? साइली, प्रिया, एकता, हिमांशु, अथर्व, यहां तक समझा सभी को बेटा? यस, यस और नो? It's a very Yes, important algorithm, okay? We are asking the many times of exam. तो यहाँ पर देखो
कि 5 + 6 मैंने कैसे निकाला, ये d की ह्यूरिस्टिक वैल्यू प्लस h की वैल्यू, यानी a टू d की h की वैल्यू कितनी निकल रही है मेरी, 6 निकल रही है। लेकिन साथ ही साथ में और एक वैल्यू मेरी यहां पर क्या निकलेंगी, क्योंकि a से लेकर मैं ई पर भी जा सकता हूं, ए से लेकर के मैं ई पर भी जा सकता हूं, तो क्या निकलेंगे मेरी वैल्यू, देखो यहाँ पर 8 + 1, तो यहां पर मेरी वैल्यू कितनी निकल रही है, 9। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, 6 इज द मिनिमम वैल्यू, सो आई हैव कंसिडर 6 वैल्यू, आई हैव कंसिडर 6 वैल्यू। बट d is goes to h, but d is goes to h node, so d की ह्यूरिस्टिक न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी रहेंगी, जबकि ऑलरेडी कितनी थी, 5 थी, लेकिन न्यू d की न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू मुझे फाइंड कैसी करनी है, देखो यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ 2 + 1, 2 + 1, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 + 1, ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ h इज 2 एंड एज वैल्यू इज 1, सो 3। तो यहाँ पर मेरी d की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी बन रही है, 3 बन रही है। तो उसके हिसाब से अब मेरी a की ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी चेंज होंगी, 3 + 1 क्या होंगी, 3 + 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 4। तो मेरी रिवाइज वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर अभी a की रिवाइज वैल्यू कितनी बनी, 4 बनी, क्योंकि a को पहले ये पता ही नहीं था कि d के बाद में भी h तक जाना है, बराबर है, और h के बाद में भी और एक कोई नोड हो सकता है। तो वो धीरे 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 जब हम बैक ट्रैक करते हैं तब हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे चेंज हो सकती है, वो डिपेंड्स होगा उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू पर। तो a की पहली ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी थी, 7, देन a की 2 ह्यूरिस्टिक वैल्यू कौन सी आई, 6 एंड 9, बिकॉज क्योंकि A ट्रैवल टू D एंड E, ए कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा था, यहाँ पे जो ट्री दिया हुआ है वो ट्रैवल कैसे कर रहा है, D टू E, यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो D के हिसाब से उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो गई, 6, और E के हिसाब से ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी होगी, रिवाइज ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी होगी, 9। देन अगेन गोज टू D टू H, यानी कि A गोज टू D टू H, अगर यहाँ पे जा रहा है तो ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी रहेंगी, तो जब तक हम डी की नहीं निकालेंगे तब तक ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू नहीं निकलेंगी। तो मैंने यहाँ पे डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, 2 + 1, 2 इज अ ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ एज एंड 1 इज अ एज ऑफ कॉस्ट, सो एडिशन ऑफ द 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू कितनी निकल रही है, 3, ठीक है। अब डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या बनी, 3, तो 3 + 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 4। तो 4 की ह्यूरिस्टिक ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, रिवाइज ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, 4 है, और 4 देखो या तीनों में से भी मिनिमम है, 4 वैल्यू इज अ मिनिमम ऑफ 6 एंड 9 वैल्यू। सो अगेन एस की जो है हम लोग फिर से ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालते हैं। तो 4 + 1, यहाँ पे देखो न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, मैंने जो रेड बॉक्स में दिया हुआ है जो वैल्यू, 4 + 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 5 होता है, कितना होता है, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मेरी न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज 5, न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज 5। गॉट इट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर मैं कैसे एक्सप्लोर करूंगा, मुझे बताओ, यहाँ पर मैं कैसे एक्सप्लोर करूंगा, एज गोज टू ए टू बी, ए एंड बी, देन अगेन गोज टू ए टू डी, डी टू एच। तो मेरा ऑप्टिमल पाथ क्या है, मेरा ऑप्टिमल पाथ क्या है, ए टू एस टू ए टू डी एंड डी टू एच। बट ए ओ स्टार अल्गोरिदम में क्या होता है, इसके ड्रॉबैक क्या है, कि मान के चलो मैं यहां कंसीडर करता हूं कि यहां पर और एक मैं नोड को ऐड कर देता हूं, ठीक है, यहां पर मैंने और एक नोड को ऐड कर दिया और इसका नाम लिखा मैंने m, ठीक है। गॉट इट दिस पॉइंट एवरीवन, ये समझ में आ रहा है बेटा, यहां तक समझा सभी को। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पर मैंने ट्री को थोड़ा सा बढ़ा दिया, और मैं ट्री को क्या कर रहा हूं, और बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने ट्री को और इस तरीके से बढ़ा दिया है, और मैंने लाइव आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से मैंने ट्री को बढ़ा दिया। और मैंने यहाँ पे लिखा यम एन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने आर। अब मुझे बताओ कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, कि जो ए स्टार एल्गोरिदम है, यूजिंग दिस ट्री फाइंड द ऑप्टिमल पाथ, ठीक है, वी आर टेकिंग द इक्वेशन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन।
उस इक्वेशन के हिसाब से मैं ऑप्टिमल पाथ को भी फाइंड कर रहा हूं। तो मुझे सबसे पहले मिनिमम वैल्यू क्या मिली, इस साइड से मिली, यानी S टू C मिली। तो इसका मतलब क्या है, मैं कहां पे ट्रेवल करूंगा, S टू C पे ट्रेवल करूंगा, C से G पे ट्रेवल करूंगा, G से M पे ट्रेवल करूंगा, M से N पे ट्रेवल करूंगा, N से R पे ट्रेवल करूंगा, R से अगेन मान के चलो कुछ नोड उसको कनेक्टेड है, मैं वैसे ट्रेवल करते जाऊंगा। जबकि इस साइड पर मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। इफ मेरे नोड कनेक्टेड है फ्रॉम वन टू अनदर, वन टू अनदर इस तरीके से, तो मैं यहाँ पर ट्रैवल नहीं करूंगा। इस साइड में मेरा ट्रैवलिंग जो है वो रुक जाएगा, इस साइड में मेरा ट्रैवलिंग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जबकि यहाँ पर सबसे बेस्ट पाथ मुझे मिला था, क्योंकि यहाँ पे सबसे रिवाइज वैल्यू कितनी मिली थी मुझे, 5 मिली थी। यानी कि मान के चलो अगर मुझे स्टार्टिंग में ही मिनिमम पाथ मिल जाता है, मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, तो मैं वहां से ही ट्रेवल्स करता हूँ। देन इफ मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, आगे बढ़ते जाता हूँ, तो बैक ट्रैकिंग करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा समय मिलेगा, और मैं कुछ वर्टाइसेस को, कुछ नोड को क्या कर सकता हूँ, ट्रैवल ही ना करूं, मैं वहां पर जाऊं ही नहीं। यानी कि ए स्टार एल्गोरिदम और ए स्टार एल्गोरिदम में, एओ स्टार एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है, कि ए स्टार एल्गोरिदम में ऑप्टिमल पाथ मिलेगा या नहीं मिलेगा गारंटी दे रहा है, बट एओ स्टार एल्गोरिदम में ऑप्टिमल पाथ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। गॉट इट दिस पॉइंट, कि ये कैसे फाइंड हो रहा है, कि अभी आप लोगों को मिनिमम पाथ यानी ऑप्टिमल पाथ कहां से मिल रहा है, एस टू ए टू डी एंड डी टू एच। बट हमारे एल्गोरिदम ने एक्सप्लोर कहां से किया, मिनिमम वैल्यू से किया। तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू कहां मिली थी, एस की मैक्सिमम वैल्यू थी 21 और मिनिमम वैल्यू थी 14। तो उन्होंने स्टार्टिंग कहां से किया, इस साइड से किया। तो मान के चलो उनको आगे 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 अगर कोई ट्री मिलती है, तो वो क्या करेंगे, धीरे 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 उसमें ही बढ़ते जाएंगे और बैक ट्रैकिंग करना खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो ये समझा आप सभी को, यस एवरीवन, ये समझा बेटा, यस एवरीवन, ये समझा आप लोगों को, यस सर नो। Yes. हाँ, आगे बढ़ते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, मैं इसको अभी 2 मिनट बाकी है तो बाद में लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। Eostar algorithm is a theoretical part. Initialize the graph to start node. Travel the graph following the current path, accumulating the node that have not yet been expanded or solved. Pick any of the node and expand it. And if it has no successor, call this value fatality. Otherwise, calculate the f of f dash for each of the successor. अब फैटिलिटी का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखो ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 0 है, ठीक है। सो दैट इज द टर्मिनल नोड, दैट इज द सॉल्व नोड। तो यहाँ पर ये वैल्यू सॉल्व होती है, दैट इज द fertility. Okay, if f dash is 0, then mark the node is solved. F dash is 0, then mark the node as a solve. Change the value of f dash for the newly created node to reflect its successor by back propagation. Successor by back propagation. Whenever possible, use the most promising route. If a node is marked as solve, then mark the parent node as a solve. ठीक है, if starting node is solve or value greater than fertility, stop, else repeat from 2. अगर फर्टिलिटी की वैल्यू जो है उससे ज्यादा है तो वो वहां पर जाकर के स्टॉप कर देगा, ठीक है, स्टार्टिंग नोड से। देन एडवांटेजेस ऑफ दिस एल्गोरिदम, it is the optimal algorithm. Okay, optimal path finding algorithm. If travels according to the ordering of the node, it can be used for both or and graph. And disadvantages is something for the unsolvable node, it can't find the optimal path. अगर वो गलत तरीके से ट्रैवल करता है तो हो सकता है ऑप्टिमल पाथ वो फाइंड ना करे। इफ अगर वो करता है तो हो भी सकता है, यानी कि गारंटी नहीं मिलती है। ओके, वन मोर मिनट बाकी है। मैं चाहूंगा कि आप फिर से ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि मैं आपको एक और एग्जांपल समझा के बताऊं, ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए एओ स्टार एल्गोरिथम कैसा है।
तो 1 मिनट रिमेनिंग है, तो आप लोग फिर से रिज्वाइन करेंगे। ऑल 15 स्टूडेंट्स रिज्वाइन अगेन। ठीक है, देखो यहाँ पर नोट, A star algorithm and AO star algorithm is asked in an exam more than 3 to 4 times in winter and summer examination with 6 to 7 marks.